السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپہ حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم شو کی ابتدا میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس میں۔ میرے لفظوں کے سحر میں مبتلا اچھے اور برے کی پرکھ رکھنے والے، سیاستدانوں کی کمزوریوں پر عقابی نظر رکھنے والے، آپ بے شک کمبے کی نظر کر لیجئے گا۔ کاپی کر لوں گا شاہ جی، میں کر لوں گا۔ چلیں یہ آپ کا اپنا رسک ہے۔ شاہ محمود قریشی کی موٹر بائک پر سواری کو زبان زد عام کرنے والے میرے معزز صحافی بھائیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی میں بھی معزز میں بھی ہوں۔ بیٹا جہاں جہاں سے آپ کو مائنس ہونا چاہیے خود ہی کرتے جاؤ اپنے آپ کو، ہمیں ذرا اپنی تقریر کی لہر میں آنے دو۔ بھائیوں آپ نے دیکھا شاہ محمود جب موٹر بائک کے پیچھے بیٹھ کر اپنے آبائی شہر ملتان کا چکر لگا رہا تھا تو پوری دنیا کے کیمرے شاہ محمود کا پیچھا کر رہے تھے۔ شاہ جی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کے شیخ رشید کی نقل کی ہے، انہوں نے جو پنڈی میں کیا آپ نے ملتان میں کر دیا۔ ہرگز نہیں، یہ خیال آپ کا غلط تھے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ غلط العام ہے۔ ٹھیک ہے ان کی بھی موٹر سائیکل تھی، ہماری بھی موٹر سائیکل تھی، مگر خدا را یہ تو جانچ لیجئے کہ ان کی چائنا کی موٹر سائیکل تھی، ہماری اصلی جاپانی تھی۔ اوپر سے ان کی پرانی موٹر سائیکل، ہماری بالکل نئی برینڈ نیو، ان کی تو اتنی پرانی کہ شاید چوری کی ہو، اور ہماری نوی نکول ہم نے خود خرید کے دی۔ اچھا، اور سب سے بڑا فرق ان کی موٹر سائیکل کی ٹینکی خالی، اور ہم نے اپنی موٹر سائیکل کی ٹینکی میں خود 2.5 لیٹر پیٹرول ڈلوایا۔ 2.5 لیٹر کیوں؟ بھائی اس موٹر سائیکل والے لڑکے نے منت ہی 2.5 لیٹر کی مانگی تھی۔ نہیں شاہ جی بڑا فرق تو یہ تھا کہ ان کا ہزار بند لٹک رہا تھا، آپ کا نہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ گہرائی تک نہیں پہنچے میرے بھائی، انہوں نے تو ہزار بند ڈالا ہوا تھا، ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دن الاسٹک سے کام چلایا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری موٹر بائک پر بیٹھ کر ملتان کا چکر لگانے والی ویڈیو کس قدر وائرل ہوئی کہ وہ ٹاپ 10 بن گیا۔ یہ تو ہے، پوری دنیا سے ہمارے دوست احباب اور چاہنے والے ہمارے مریدوں نے ہمیں فون کیا کہ شاہ جی مبارک ہو، آپ خیر خیریت سے موٹر بائک پر چکر پورا کر آئے۔ بلکہ یقین مانیے جب ہم موٹر بائک پہ بیٹھ کے ملتان کا چکر لگا رہے تھے تو ہمیں سابق وزیر خارجہ امریکہ ہیلری کلنٹن کا فون آیا کہ شاہ جی تھوڑا جی آگے ہو جاؤ، میں بھی پیچھے بیٹھ جاؤں۔ بلکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ امریکن عوام نے وہاں کے صدر ٹرمپ کو بہت لعن طعن کی کہ آپ نے ہمارا یہاں ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور ادھر پاکستان میں آپ کے کیلیبر کے لیڈر دیکھیے کس طرح موٹر بائک کے پیچھے بیٹھ کر عوام سے محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاہ جی آپ جتنے نفیس ہیں، صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ آپ کے شاگرد ہوں۔ بھائی صاحب جتنے آپ باریک ہیں، آپ کو چاہیے کہ پین کی جگہ اپنے منہ سے لکھا کریں۔ خبردار جو ہمارے سامنے اس جاہل مطلق ٹرمپ کا نام لیا تو ایک تو یہ کہ وہ الیکشن میں ہیلری کا مخالف رہ چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ امریکہ میں استبدادی قوتوں کا عالم بردار ہے، اور شاہ محمود بچپن سے ہی استبداد کے خلاف شمشیر برہنہ ہے۔ شاہ جی کیا بڑی بات کی آپ نے،
लेकिन ये इस्तबदाद जरा बता देंगे लिखना। भैया प्लीज तंग ना करें। देखिए आप शाह जी को डिस्टर्ब करते हैं, ना करें। मैं रिपोर्ट पर कैसे लिखूं? इस्तबदाद लिखा होता है। अबे ओ फाख्ता के अंडे पीने वाले जालिम, इस्बदाद नहीं होता, इस्तबदाद। इस्तबदाद। जी हाँ, लिखिए। जी सर जी। ये अलग से मौसूफ को ये नहीं मालूम कि अलिफ से है या बे से है, और हैट ऐसे पहना हुआ है जैसे आई से लिखेंगे। इस्त 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 भी अलग से। इस्त इस्त जैसे आपने हैट पहन के इसका निस्त मारा हुआ है, इसी तरह बरवज़ने निस्त इस्त बदाद बरजरे बदाद। इस्त मैं लिख लिया शाह जी, ते दाद मैं अगे जावेद मियां दाद वाला लिखा। आप शक्ल से खान साहब लगते हैं, आप जावेद मियां दाद वाला रहने दें, शेर मियां दाद वाला लिखिए। ओ बाबे दे दरबार चिड़ियां बोल रही हैं। जी हाँ, देखिए कितनी अहम बात कर रहे थे हम, और इस जाहिले मुतलिक ने बीच में अपनी दरफुंतनी छोड़ दी। दरफुंतनी शाह जी तुझे सीधा गाना कढ़ना पे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार दरफुंतनी उर्दू की तरकीब है। जुनैद भाई, आप उसे समझाने बैठ गए हैं, उठ के उसकी दरफुंतनी पर ठुंडे मार के बाहर निकाले। और यार तुसी नहीं करो कोई सवाल, तानू कोई दरफुंतनी नहीं होगी। अरे यहाँ मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, जो पिछले हफ्ते आपने गासिबाना कब्जा किया है मेरे 5000 के नोट पे, उस पे मुझे बड़ी तादाद में हमदर्दी के पैगामात मौसूल हुए हैं, और लोगों ने बड़ी, हाँ नहीं वाकई अफसोस का इजहार किया है। बहुत बहुत हमदर्दी की है, एक इथोपिया की आवाम से और एक इससे। लेकिन तुम्हारे हक में भी कई आवाजें आई हैं। लोगों ने मुझसे ये मुतालबा किया है कि जी कोई अजीजी के जो माली मसाइल हैं उनका मुस्तकिल बुनियादों पर कुरान तिलावत किया जाए। और ये जिस बंदे ने मैसेज भेजा उसकी मेरी जरा बात तो करा। और वो खुद तो गरीब आदमी है, तुम्हारे साथ हमदर्दी की है। वो तो तुम्हारे साथ बाद में पत्ती डालेगा खुद कि मैंने मेरे कहने पे दिए, तुम मेरा हिस्सा दो। लेकिन नहीं, वाकई मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, व्यूअर्स ने तवज्जो भी दिलाई है कि वो जो आप सेगमेंट किया करते थे हस्बे माजी, मारूफ शख्सियात के बचपन की तस्वीर पहचानने वाला, उससे अजीजी की अच्छी खासी आमदन हो जाती थी, तो वो दोबारा शुरू करें। अरे वाह यार, जरूर करो प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी, और आसान आसान बंदों की तस्वीरें दिखाया करो। अच्छा चलो चलो ठीक है। वो जो होता है ना ज़हनी आजमाइश के मुकाबले होते हैं, उसमें पहले एक जस्ट एक तोहफे के तौर पे जो पूछा जाता है जी पाकिस्तान किसने बनाया था, ये 5000 रुपए ले कहते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल जो पहली तस्वीर है ना बिल्कुल उसी नौयत की है। अच्छा। बहुत ही आसान है, शख्सियत बड़ी है। तो बताओ ना पहले। 2000 रुपए, 2000 रुपए से हम शुरू करें। अब मुझे 5000 की आदत पड़ गई है। अच्छा चलो, अगर तो तुमने बूझ ली, बहुत ही आसान तस्वीर है, तो 5000 तुम्हारा। लेकिन अगर तुमने गलत बताया तो तुम्हें वो जो मेरा कब्जा शुदा 5000 का नोट है वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, पक्की बात। तो जी अगर बता दिया तो फिर और 5000 और चलो चलो ठीक है, पिछला ही ना अकोमोडेट कर ले। वो नहीं, लेकिन अगर गलत बताया तो 5000 वापस करना पड़ेगा मेरे वाला। ठीक है? ठीक है, चलो, इसका मतलब ये सेगमेंट मैंने अपने लिए शुरू किया है। ये पहली तस्वीर है। वाह जी वाह। लो जी 20 सवालों की इजाजत होनी ओ, चाहिए। 20 कोई नहीं, इंतहाई आसान है, तुम्हें एक सवाल की भी इजाजत नहीं है। लो ये क्या बात हुई फिर, कसौटी किस चीज की है? ये तो तुमने सोटी निकाल ली है कसौटी की जगह। इतनी बड़ी उम्र में तुम बंदा नहीं पहचान रहे यार, अपनी बड़ी उम्र की नहीं बात कर रहा, जिसकी तस्वीर पहचान रहे हो, इतनी बड़ी उम्र में नहीं पहचान पा रहे यार। नहीं, कोई अननोन आदमी होगा, नहीं अननोन पाकिस्तान की मारूफ तरीन शख्सियत है, मारूफ भी नहीं। सिंगर तो नहीं है? हो गई यार, क्या हो गया तुम लोगों को यार सारों को? नहीं, अदाकार है यार, अपने आई टेस्ट करवाओ सारे जाके। हो गई। सियासतदान है? हाँ जी, गौर तो करो जरा। तो फिर कटिंग ओ मेरे माल का कौन है? नवाज शरीफ साहब। हो गई यार। वाह, यार माशाल्लाह कितने प्यारे हैं ये तो।
वैसे हुण भी लाल सुरख हैं, खूबसूरत आदमी हैं, मगर ये देखो जवानी में इतने स्मार्ट आदमी मैंने नहीं पहले देखी इस तरह की उनकी कुफर। ये वाकई मियां साहब के बचपन की कुछ तस्वीरें नेट पे सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही कमियाब है, कभी नहीं नजर आई है नहीं तस्वीर। जी, फिर वो सही कहते हैं कि रफी की आवाज मिलती है। ये एक दौर आया था जब लंबे बाल और बेल बॉटम पैंटें चली थी, और वैसे तो मियां साहब के वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे बहुत डाढ़े थे। मुझे लगता है मियां शरीफ साहब हज करने गए थे तो पीछे से ये स्टाइल बनाया था महीने 1.5 महीने के लिए। उस वक्त तो 2-2 महीने का हज होता था। अच्छा, अगली तस्वीर देखो, वो इससे बड़ी उम्र की है लेकिन पहचानने में ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। उसमें तो बाल पहली बार है ना, वाहिद तस्वीर है जिसमें मियां साहब के लंबे बाल हैं, इसमें मियां साहब की मूछें पहली बार नजर आ रही हैं। ये दिखाएं, हाय 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 हाय, इधर तो संतोष कुमार ही लग रहे हैं ये। वाकई ये भी पहली दफा इस तरह का इनका चेहरा नजर आया। अब एक बचपन या लड़कपन की तस्वीर भी। ये देखो, इसमें साहब पहचाने जा रहे हाँ जी, इसमें साहब पहचाने जा रहे हैं, और ऐसे लड़के का बचपन में नाम लाइमन पप्पू होता है। हैं। ये जुमला उसी वक्त से बना था, पप्पू यार तंग ना कर। यार हद हो गई है, तुम्हारे वाली क्यूटू लग रहे हैं। मेरा 5000 तो गया ना। यार मुझ लिया मैंने, ये मलमूली पाई तो नहीं ना। अच्छा, अगला एक और 5000, लेकिन इस शर्त पे कि अगर तुम जीत गए तो मुझे दे देना यार वापस प्लीज। यार अमान से मैंने इतना कंजूस अमीर बंदा भी नहीं देखा। अच्छा अभी जीते नहीं है, मांग पहले डाल दी है। लीचड़ी हो जाता है यार, ऐसा इसका पैसा खर्च हो जाए तो इसको पता नहीं हॉल फिरने शुरू हो जाए। ये देखो, ये तो बहुत बचपन की ले आए हो। वैसे यकीन करो कि अंदाजा हो रहा है। सियासतदान है? नहीं। एक्टर? हाँ, एक्टर भी है, मारूफ एक्टर है, जबरदस्त एक्टर। तो आजकल काम कर रहे हैं? हाँ, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। अच्छा जी, टेलीविजन में ज्यादा पॉपुलर है या फिल्म में? दोनों इक्वली। जल्दी जल्दी पूछता जाओ, जल्दी तेरी जल्दी। डैन है ओए। चलो एक और। जवेद शेख साहब है ये? नहीं नहीं, एक और तस्वीर। हाय हाय हाय, ये तो दलीप कुमार साहब है। अब गोद में कौन है यार? ओ बोले बोले बोले, नहीं पता चल रहा है। पोता होगा। ये जरा सा बच्चे के चेहरे पे गौर करो, तुम बूझ जाओगे। चेहरा तो फीना फीना है। टीवी का एक मकबूल प्रोग्राम आगे देखो, गौर एक करो। मिनट यार, एक मिनट जरा। मुझे तो थैला लग रहा है। और नजदीक नहीं यार, जरा पिछली तस्वीर दिखाओ। ये लो पीछे भी दिखा दो। ओ मेरे मालिक, कौन है? ये वासे चौधरी तो वासे चौधरी। माय गॉड। लेकिन अगर मैं हिंट ना देता ना तो तुम्हें पता ना चलता, इसलिए ये मैं पता कहां से पहचाना हूं? इनके जो दादा थे ना, वासे चौधरी के जो दादा अबू थे, हाजी ईद मोहम्मद मरहूम, वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े आदमी थे। अच्छा। ये दलीप कुमार की गोद में वासे चौधरी बैठ सकते हैं यार। इसके वालिद साहब जो है मरहूम, वो भी चंद दिन पहले फौत हुए हैं, महफूज चौधरी साहब। बूजी बूजी के नाम से वो पॉपुलर हैं आर्टिस्टों में। पुराने सीनियर जो शोएब हाशमी साहब ग्रुप है ना, उनमें बड़े पॉपुलर हैं। ये और तस्वीरें दिखाओ इसकी वासे की। ये देख, इसको तो मैं पूछूंगा ना, इसकी जुर्रत कैसे हुई दलीप साहब का राज कपूर साहब के साथ? इतना पुराना है। ये देखे। और ओए 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 ओए, पहचान रहे हो गौरी? ओम प्रकाश साहब। ओम प्रकाश साहब की गोद में बैठो, और ये साथ इसके अब्बू हैं महफूज चौधरी साहब। ये एक और देखो। यार ये तो तुम हमें जेलस कर रहे हो। आ गया ना? वैसे ये गुड लक है वासे की कि जवान हो के भी रहा फीना ही है। अच्छा, जल्दी से बताओ यार, फिर सेगमेंट खत्म करें कि ऐसे बंदे को देख के क्या ज़हन में आता है, क्या करते हैं ऐसे बंदे? ऐसे बंदे रस्से से लटक के दीवार पे फोटो बना लेते हैं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार ये जो
اس ہفتے یہ جو مہنگائی کی خبریں آتی رہی ہیں اور خاص طور پہ ٹماٹر بڑا ہٹ رہا ہے، ہاں اس حوالے سے ہی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ اب ماڑے آدمی سے روٹی بھی چھیننا شروع ہو گئی. بات صرف ٹماٹر تک نہیں ہے. ٹماٹر تو خیر ساری حدیں پھلانگ گیا ہے نا. پتہ نہیں اس کو 4 پاؤں لگ گئے ہیں اچانک. ٹماٹر 2 دن پہلے تک 175 کو بھی کراس کر گیا تھا. جی جی. اب مرغی کی تو 2 ٹانگیں ہیں، وہ بھی 300 کراس کر گئی. دیکھو لیکن یار، اصل بات پتہ ہے کیا، یہ جو ہے سبزی یا چکن جو ہے یہ تو ہمارے ہاں بہت تیزی سے فلکچویٹ ان کی قیمتیں کرتی ہیں. لیکن جب جائزہ لیا جاتا ہے مہنگائی کا تو پھر آپ سالڈ بیسس پہ لیتے ہیں. پچھلے 1 سال کے دوران سبزی کی قیمتوں میں جو سبزی 1 سال پہلے 30 سے 50 روپے تھی مجموعی طور پہ، آج 80 سے 100 روپے ہو چکی ہیں. یہ میں سالڈ گراؤنڈز پہ کہہ رہا ہوں، یہ میں فلکچویشن کی بات نہیں کر رہا. اسی طرح بعض جو مجھے سمجھ نہیں آتی، نواز شریف شہباز شریف صاحب مختلف شہروں میں جو جلسے کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی کارکردگی بتا رہے ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان جلسوں کا مقصد، عوام کو اکٹھے کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. لیکن جب وہ خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو کم از کم، یا ہمارے اسحاق ڈار صاحب جب پریس کانفرنسز کرتے ہیں پورے تمطراق کے ساتھ، تو مجھے تو کبھی ان پہ غصہ آتا ہے، کبھی پیار آتا ہے، کبھی ترس آتا ہے کہ کر کے رہے ہیں آپ اعداد و شمار کو کس طرح عوام کی نظروں سے چھپا رہے ہیں. تو دیکھو یار کہ پیٹرول کی قیمت میں جو بہرحال ہماری مہنگائی کا سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے، پچھلے 3 ماہ کے دوران بڑی خاموشی کے ساتھ 9 روپے کا اضافہ کر دیا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ کیوں ہے. عالمی منڈی 3 مہینے پہلے بھی $48 فی بیرل پہ کھڑی تھی، آج بھی $48 پہ کھڑی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے یار. اچھا اب دالوں کی قیمتوں کی بات کر لیتے ہیں، جو غریب آدمی کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے دال. اور دال میں بھی جو دالوں کی لیڈر ہوتی ہے وہ چنے کی دال ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. جی جی. وزیر اعظم آف دالز. اب یہ جو وزیر اعظم کی اپنی قیمت تھی، جب موجودہ وزیر اعظم کی حکومت آئی ہے نواز شریف صاحب کی، تو اس وقت چنے کی دال کی قیمت جو تھی وہ 80 روپے فی کلو تھی. آج 3 سال گزرنے کے بعد 160 روپے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ابھی 2-3 دن میں کچھ کمی واقع دیکھنے میں آئی ہے، 140 تک چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے اگر حکومت کوئی توجہ کرے تو قیمتوں میں کمی بھی لائی جا سکتی ہے. نہیں تو یہ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ یہ دال جو اتنی مہنگی ہوئی ہے میاں صاحب کے آنے پہ، یہ دال میاں صاحب کھا گئے؟ ایسا تو دال نہیں کھاتے. یار میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ماڑے لوگ ہیں وہ بیچارے یہ دال یا چھوٹی موٹی سبزی بنا لیتے ہیں، کوئی ایک ادھا وچ ٹماٹر پھینک دیا کہ شاید بچے لال ہو جائیں. نہیں میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، آپ تو اب پکے پیٹھے ہو گئے ہوں. تو وہ بیچارہ گزارا کر لیتا ہے. اس طرح کی جو بالکل ہی سطحی سی چیزیں ہیں خوراک میں، ان کو تو دھیان دینا چاہیے. اچھا غریب آدمی تو دال اور سبزی پہ رہتا ہے. جو ذرا تھوڑا متوسط طبقے کا آدمی ہے وہ ہفتے میں 2-3 دن گوشت کھا لیتا تھا. اب چکن 300 روپے، یعنی اندازہ کرو 300 روپے میں بھی ٹک نہیں رہا ابھی چکن. چکن ناٹ ٹکن ایٹ آل. اچھا پھر تم دیکھو کہ چکن تو چلو فلکچویٹ کرتا ہے نا، اوپر جاتا ہے پھر نیچے، پھر سستا ہو جاتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی مٹن اور بیف اوپر جا کے نیچے نہیں آیا جو اس کا. اب پچھلے 1 سال کے دوران جو مٹن کی قیمت ہے اس میں 100 روپے سے زیادہ اضافہ ہو گیا. پچھلے سال 750 روپے بڑے شہروں میں ایوریج جو مٹن کی قیمت تھی، آج 850 سے 900 تک ہے بڑے شہروں میں. میں تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ چلو بھابی تم سے اگر سبزی گوشت منگواتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تم نے گفتگو کر دیا. اب 1.5 پاؤ ہی آئے گی ہے. ہاں اتنی تفصیل سے وہی بندہ بتا سکتا ہے نا جی، جو خود بیچارے سر تھیلا پکڑ کے جاتا. اور جس طرح سے گوشت مہنگا ہوتا جاتا ہے، میرے حصے کی جو بوٹی ہے وہی کم ہو رہی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب کس طرح سے ساری فگرز کو مینوپلیٹ کرتے ہیں. موٹی موٹی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے یار. آپ مہنگائی اگر ہو رہی ہے اس کو تو ایک طرف رکھیں، اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں نا. آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز کیا آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے ایکسپورٹس کیا ہیں، امپورٹس کیا ہیں، یہ تو آپ چھپا ہی نہیں پاتے نا، جتنا مرضی مینوپلیٹ کر لیں. ایکسپورٹس آپ کی کم ہوتی جا رہی ہیں، امپورٹس آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. آپ مانو یا نہ مانو، آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس موجودہ مالی سال کے پہلے 7 مہینوں کے دوران ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں 3.2% کمی واقع ہوئی ہے.
पहले 7 महीनों कितने बड़े बड़े दावे किए थे कि जनाब हम 25 अरब डॉलर 30 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। 7 महीनों के दौरान आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो 11 अरब डॉलर से नहीं बढ़ सकी। किसने दावे किए थे? इसाक डार साहब ने। इसे कहते हैं फफे कुटिया इंसान। गल टमाटर दी होन रही है तो साग डार फाड़ लिया। और दूसरी तरफ देखो कि इन 7 माह के दौरान हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 29 अरब डॉलर से तजावज कर गई हैं। यानी जो इजाफा है 7 महीनों के दौरान इंपोर्ट्स में वो 13% से भी ज्यादा है। तो अंदाजा लगा लो फिर तजारती खसारा कहां से कहां चला गया हुआ है। ਪਾਉ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਖਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? यार तुम हर जगह मेरी बेइज्जती कराते किसी बात की भी तुम्हें समझ नहीं लगती। कल मठियारी वाली दुकान के ऊपर कागज पे जलेबी रख के कह रहा था यार समझ नहीं आती शुरू कितों होंदी ते मुकदी किथे। अब तुम्हें तजारती खसारे का नहीं पता यार। तजारती खसारा मामूली सी एक बात भी नहीं तुम्हें मालूम। बता दो कुछ, बताएं। दसो जी। तजारती खसारा सीधा सीधा बात यह है कि आपकी इंपोर्ट कितनी है और आपकी एक्सपोर्ट कितनी है। आप खर्च कितना कर रहे हो और आप कमा कितना रहे हो, जो फर्क है वो आपका तजारती खसारा है। ये एक सादी सी बात नहीं तुम्हें समझ आती। जो हमारी आमदन होती है घर में और जो हमारा खर्च होता है उसमें जो फर्क है वो हमारा तजारती खसारा है एक तरह से, यूं समझ लो। इस वक्त हमारा इन 7 महीनों के दौरान हमारा जो तजारती खसारा है मुल्क का वो 17 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। होए 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 7 महीनों में तो बंदा कौन है गले थे। अच्छा ये जो तुमने घर की मिसाल दी है, घर में तो तजारती खसारे की जिम्मेदार बीवी होती है अगर वो शो ना देख रही हो तो ये मुल्क में कौन जिम्मेदार होता है? घर में तजारती खसारे की जिम्मेदारी बीवी बेचारी पे क्यों डाल दी है? वो तो मेरी बात सुनो ना, वो तो खर्च करने की जिम्मेदार है, कमाने के जिम्मेदार तो तुम हो, ज्यादा कमाओ फिर। यार क्यों एकदम डर जाते हो? जेड़ी रात तो चौकीदार दे कमरे च कढ़नी हो अंदर नहीं हो सकती। अभी आपने ये कहा है कि आमदन कम हो और खर्च ज्यादा हो, उसे कहते हैं तजारती खसारा। तो कौन खर्च करता है बताओ खर्च ये? भी तो कमाता कौन है? कमाते तो तुम हो ना। तुम्हारा मतलब है कमाना ही ज्यादा फिर? कमाना ज्यादा करो। हाय, सिर बेचारा परजाई के सामने सुरखरू होने के लिए अपने एक दोस्त को ये लील करे। नहीं यार, मेरे 5000 से तुम्हारी कमाई बढ़ी थी ना, और मत करो। वो फिर हर महीने दो तो फिर है ना ठीक है। नहीं बाकियों से भी लो ना, ये भी शो करने आते हैं। शाबाश, वो बेचारे तो मेरे 5 हिस्सेदार बने। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है महंगाई की ताजा लहर से परेशान हमारा फीका। क्या सब्जी वाला है तुम्हारे मोहल्ले का, और क्या है? आप तो कहते थे कि मैं इसकी ओ करूंगा कि याद करेगा उन्हें कुर्सी पे बिठा देते हैं। उसका भी तो एक मौकफ है ना, वो भी सुन लेने दो ना। उसका तो दुकान है, मुकूफ नहीं है। नहीं वो भी तो कुछ कहना चाहता है ना, उसका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है यार। वो भी उसका भी एक अपना, मैं कैसे आसान लफ्जों में बताऊं तो तुम्हें। जो हमने कहा फिर वो किधर गया? जो बड़े बड़े लोग टीवी पे बैठ के बातें करते हैं उनकी सुन लेते हैं, तो हमने जो बात करनी है तो उसको भी बिठा दिया उधर ही। अच्छा चलो मैं इनकी तरफ बाद में आता हूँ, पहले ये बताओ आप किनको लेके आए हो साथ? ये मलक साहब है वो जो हमारे महल्ले में नहीं रहते। हाँ जिनका तुम अक्सर जिक्र करते हो। अच्छा, हाँ अच्छा। ये बहुत अच्छे आदमी है। ये पहले भी एक बार हमारे साथ। हाँ एक दफा पहले मेरे साथ आए थे, तो आज मैंने इनको कहा कि उधर से फोन आया है जो सलीम साहब का, तो वो कह रहे हैं कि जो महंगाई क्या है बात करो आके, जो शिकायत है तुम्हारी। तो कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मलिक साहब आप भी महंगाई का मुकाबला करने के हवाले से कुछ तो गरीब लोगों की मदद कर दिया करें। आपके मोहल्ले में कितने 100-150 लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। देखो भाई जी पूरा पाकिस्तान मंगन डिया ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ 2 ਦੇਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। इसको मैंने बताया था कि ये जब भी जाए ना सब्जी लेने तो हर दफा ही 20-25 रुपये बढ़ा देता वाले ये वाला किधर जो बैठा। अच्छा क्यों भाई यार? देखो अहले मोहल्ला को सबसे ज्यादा शिकायतें तुमसे हैं। बिजनेस बाबू जी बिजनेस। किस चीज का बिजनेस? आलू ले, गोभी ले, टिंडे ले, मटर ले,
तुसी ते धार भी नाल है। नहीं, आप यहाँ सब्जी बेचने नहीं आए, बताने ही आए हो कि क्यों महंगाई होती जा रही है। सब्जियां पिछले चंद दिनों के दौरान आसमान से बातें करने लगी। अब बाबू जी केड़ियां समान ना गल्ला, मैं ते अज तक नहीं वेख्या करेले या टींडे मुंह उच्चा करके समान नु कह रहे हो साडा मालक इत्थे नहीं हैगा, साडे ते जरा तरौंका ही ला दियो। ये बहुत तेज बंदा है। मैं इसको कहता हूँ ना कि मैं जाकर टीवी पे बताता हूँ, तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ, तुम इतना लूटते हो इधर बैठ के। कहता जा ला दे शिकायत। मैं केड़ा लूटना वा, मैं सब्जी वाला वा के सुल्ताना डाकू वा। हर गाहक नाल ही बदमाश बनिया हुंदा है ते बदमाश वेखो कड़ेला सिर थले डाके सौंदा है। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ये कड़ी नेड़ी चली तो तार नु जफी ला ली। ये क्या बात की है? सही कह रहा है। ए सब्जी वाले को ते 1.5 पा तो बाद जिदा गाहक आ जावे ना 3 सौदा तोलन वास्ते नाल मजदूर रखया है। एक कड़ी आधा किलो टींडे तोल दा बेचारा उल्टबाजी खा के सिर पड़वा बैठा सी। तू भी ते अपने मुंह दे हिसाब दी सब्जी मंगना ना। एडे एडे उत्थे हलवा कद्दू पए ने ते मैनू आ कहंदा चाचा ए टींडे किवें लाए ने। एक कड़ी अफसरां ने दी दुकान ते छापा मारिया ते पालक दे पत्ते नाल चंबड़ के कहंदा भाई जी दुकानदार इत्थे नहीं हैगा, मैं ते सुननी हां। ਭਾਈ ਜਨੇਦ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ठहर जाओ, मैं भी वही पे गल सुना मलक जी। उतो कहंदा है कहंदा टमाटरां दे बगैर हांडी पकांदियां तुहानू मौत पैंदी है। मैं क्या होई गल मलक साहब नु कहो फिर तेनू मौत पा लो। ਤਾਂ ਫੀਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂਡੀ 'ਚ? ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਐਡਾ? पता क्यों जी मैनू? यही बात हमारे वजीर तजारत ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि आवाम कुछ दिन के लिए टमाटर की बजाय दही इस्तेमाल कर लें। और वजीर साहब ते हले मलंग लगे हुए ने। और मैं अम्मा क्या मैं क्या मैनू टमाटर वाला अंडा बना के दियो ते अम्मा ने ओडे टीवी दे उत्ते वजीर नु सुन लिया सी। अम्मा ने टमाटर दी था अंडे च दही पा दिता। अंडे दा भी बेड़ा गर्क हो गया ते टमाटर भी नहीं पिया ते दही भी जाया। रोटी मेरी भी चढ़ा गई तो बाहर सुटना पिया फिर दही ते अंडा। यार फीके पुत्र तू बाहर क्यों सुटिया? ओ ही अंडा ते दही सिर च लांदा तेरी खुशकी ते जांदी। क्या बात है, तुसी बड़े तड़ होए हो। ਅੰਡੇ ਦੇ साड़ा पिंडा तड़ नालों पतला ते तड़ होया है। ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਣੇ ਆ? ਤੂੰ ਗੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। अपने लाड़े 10 रुपये का अंडा आता है, 4 अंडे मंगा यार, उसमें एक प्याज काट के तो हांडी बना के हमें रोटी खिलाती है। तो फिर अंडा ना खाए। टमाटर वो महंगे कर दिए हैं, तो सब्जी वो महंगी हो गई है। टीने खरीदने जो का बंदा लिया नहीं। भिंडी तोड़ी वैसे ही वाड़ा नहीं खांदी। गोंगलू खरीदे नहीं जाते। मलक जाओ मले च गोंगलू कहते। अरे गोंगलू मैं तो नहीं कहता, मैं तो मलक साहब की इज्जत करता हूँ। अम्मा कहती है तू ना क्या करे ननू गोंगलू। ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ मैंने ਕਹਿਣਾ। तो बताया, बस मैं नहीं कहता आपको गोंगलू। ਗੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। मैं बता रहा था कि टींडे भी नहीं खरीद सकते, मलक साहब भी नहीं खरीद सकते, कड़ेले भी नहीं खरीद सकते। ते फिर गरीब बंदा सिर्फ तकई खाए, बस रोटी ना खाए। ਉਹ ਹੈ ਬੌਂਗਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦਾ। मलक साहब चपेट मारन ते वाजदी ते नहीं। ਕਿਉਂ? मलक साहब की बांह छोटी है। एक कड़ी मलक साहब अपने पुत्रा नु कहंदे ने पुत्र तुसी वड्डे हो के मेरियां बावां बनना।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਲੋੜ ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਨਿਭਾਵਾਂ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये मार्च के एंड के ऊपर सिर्फ मौसम में ही गर्मी नहीं आई, सियासत में भी बड़ी गर्मी आ गई। और अमान से जिस तरह दरख्तों से पत्ते सड़ सड़ के नीचे गिर रहे हैं ना, उसी तरह सियासतदानों के मुंह से सड़े हुए बयानात भी गिरने शुरू हो गए। हाँ जी। 4 साल तो जियाकार यही कहते रहे हैं कि दोवें पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग विचों एक ही हैं, और इस पे अवाम भी काफी हद तक यकीन करना शुरू हो गई हाँ थी। जी। वैसे तो मुझे अब भी यकीन ही है। डोंट यू वरी एट ऑल, सारा कुछ प्लान्ड है। ये जितनी लड़ाई झगड़े बयानबाजियां ये इलेक्शन तक मंसूबे का हिस्सा है, ये चलती रहेंगी दोनों के दरमियान। यानी बीचों बीच गडेरियां, 2 तेरियां 2 मेरियां। जबरदस्त। ये होती है दानिश्वरी। क्या उसने चीचो चीच की जगह बीचों बीच। बीचों बीच। और दोनों के साथ इंसाफ भी पूरा पूरा किया है, 2 तेरियां 2 मेरियां। चलो फिर यूं कह लो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, डायलॉग बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, ये फिल्म जो है वो चलेगी काफी। इस पे जो मैं सुएर का सोच रहा ना वो ये है कि देखो ये रहा इमरान खान साहब भोले आदमी, पहले ही 4 साल बोल बाल के अपना गला बाल लिया। अब जो सियाने हैं दोनों, उन्होंने एन उस वक्त गर्म करने के लिए सालन की देग चाड़ी है जब उनको पता है कि इलेक्शन तक गर्म ही रहेगी। इलेक्शन नेड़े आना है तो उन्होंने गरम गरम निकाल के देग में से अपनी प्लेटों में डाल थोड़ा सा हमें भी चखाना जी। आप पीपल पार्टी वाले हैं या नून लीग वाले? नहीं जी, ਅਸੀਂ बैंड वाले। तानू फिर सब दो खीर ते मिले। अच्छा जी, खबरों की तरफ भी आ जाएं। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कराची में कूड़े के ढेर लगे हैं, पीपल्स पार्टी किस बात पर वोट मांगती है, आवाम पीपल्स पार्टी से हिसाब लें। बहुत अच्छे मियां साहब, यरदारी साहब क्यों ना वोट मांगे जनाब। उन्होंने पता किस बात पे वोट मांगना है? उन्होंने बात बात पे वोट मांगना है। जिस कूड़े का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इसके ऊपर उन्होंने दरी बिछानी है और उत्ते जलसा कर लेना है। हाँ, यरदारी साहब बड़े कारीगर आदमी है, वो हर दफा कोई ना कोई दरी बिछा के जलसा कर लेते हैं। सरदारी साहब ने पिछले 10-15 दिनों के दौरान जितनी भी बयानबाजी की है, गौर करो तो बिल्कुल मतलब मज़ाक़ खेज़ सी लगती है। लेकिन एक जुमले में बड़ी जान है उनके, जो उन्होंने ये कहा है ना कि नवाज शरीफ साहब को 4 साल तक कराची और हैदराबाद में कचरे के ढेर नजर नहीं आए थे। ये वाकई काबिल गौर बात है। यार ये भी भैया ये बात ही है। तुम देख लेना पाजनैद होना गरीबों के मुंडे वाला साहब है। गरीबों के मुंडे ने पिया साहब पे फोन किया ना, उसने कहा भाई जी एक यार लार्ज साइज पिज्जा लगा दे, 4 शवारमे लगा दे और साथ एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक पे ही दे। उन्होंने कहा जी किस नाम पे? उन्होंने कहा जी अल्लाह के नाम पे। अखीर पे पीपल पार्टी ने भी कहने के दो वोट तो आते। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी कहते हैं यार मियां साहब ने किया तो यरदारी साहब ने नहीं कहना। उन्होंने क्या फरमाया है? कहते हैं बिलावल की जवानी और मेरा तजुर्बा इक्तदार दिलाएगा, 4 साल मुफाहमत का दौर खत्म, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ओए होए होए, अल्लाह यरदारी साहब को मेरा ख्याल है ये नहीं पता कि 1 टन 9 रुपये दी हुई। ईंट चाहे 9 रुपए की हो चाहे 20 रुपए की हो, उन्होंने पंजाब में अपनी 1.5 ईंट की पार्टी खड़ी करने की कोशिश जरूर कर ली। सही कह रहा पाजनाद, यरदारी साहब बड़े जबरदस्त सियासतदान हैं। जितना मर्जी सियासी चिक्कड़ हुआ हो वो ईंटें रख के गुजर जाते हैं। यार सिर्फ जरदारी साहब की सियासत ही नहीं, बिलावल की जवानी भी है। और मुझे लगता है बिलावल की जवानी हिट हो जानी। शीला की जवानी तो बहुत हिट हुई थी। इस वक्त मुझे शेख रशीद के मसाइल लगे। जरदारी साहब को कहना चाहिए था कि मेरा तजर्बा बिलावल की जवानी और कायम अली शाह साहब का बचपना हमें इक्तदार दिलाएगा।
अच्छा जी, खबर सुने। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी कहते हैं अरकान सिंध असेंबली के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं जिसमें ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग सेंटर समेत तमाम जदीद सहूलतें मुयस्सर होंगी। नहीं बिल्कुल ठीक है, हुक्मरानों को लीडरों को सहूलतें ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। बनता है। अब पैसे जितने हैं वो यार लीडरों पे ही लगने चाहिए, मेंबरान असेंबली पे ही लगने चाहिए। सारा कराची तो उन्होंने बेहतरीन कर दिया, ना कहीं कूड़ा नजर आता ना कहीं कचरा। ना कोई डकैती। ना कोई टूटी हुई सड़क। हाय हाय हाय, फिर यार जितने पैसे हैं वो फिर असेंबली। लाओ जी लाओ सराज दुरानी साहब, बहुत अच्छी बात है, वेल डन वेल डन। फ्रिजा जरा यादा कर दियो तो बर्फ का भी इंतजाम जरा खिंच के रखे। परसों किस तरह सिंध असेंबली में स्पीकर साहब चुटकुले छोड़ते रहे। किसी को एहसास है कि अवाम को पिछले कुछ दिनों के दौरान वहां पे कचरे के ढेर और शर्जील मेमन का इस्तकबाल देख के लोगों ने, कुछ ने अपने नाक पे और कुछ ने अपनी आंखों पे हाथ रखे होंगे। उस दौरान इस तरह की लतीफेबाजी अवाम में हो रही है जैसे अवाम के मसाइल का कोई इदराक ही नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं सारे। यार मुझे तो ये महसूस होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ होते ही इन 700-800 लोगों के लिए, ताकि इनको उधर से गड्डियां लेके उधर दे दी जाए, उधर से गड्डियां लेके उससे लेके उधर, उनको कोठी वेली कर दी जो उन्हें इन्होंने बढ़ ले। बहुत आज तुम्हारा दोबारा 5000 बनता है। वापस जाओ। यार ये गलत बात है। या तो फिर तुम इस तरह सब्ज बाग दिखाया ना करो, अगर दिखा दे तो फिर बाग की रखवाली किया करो। आपने उठ के 5000 रुपए मरवाया है, वो निकालने लगे थे। निकालने लगे। मैं अब अपना वॉलेट ही नहीं लेके आता साहब। अजीजी कहाँ लेके जाना इतना पैसा तुमने? उस दिन भी 5000 ले गए थे। वो वाला 5000 स्विस बैंक पहुंचा दिया। तेरी खैर में क्या रकम मेरे पे डाली, कहाँ लेके जाना इतना पैसा? अच्छा जी अजीज साहब, अपनी पसंदीदा खबर सुने जरा। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए इंतजामात शुरू कर दिए गए। की दसिए तो भाई जी, गर्मी ते जुनैद साहब यकीन करो मत वज जांदी नहीं यकीन ते भावें तुसी मेरे भतीजे कोलों पुछो। नहीं चाचा रिच हो गल्लां नहीं रहियां। ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਘਰ ਚ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਵਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਲਜੀ ਫੇਰ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਲਵਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲਓ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ। वैसे करवाए तो सही चाचा जी। पढ़े लिखे आदमी और रेछ टेंड करा के बेचारा रेछ लगेगा, वाला नाली दी ओदी रौनक बड़ी होंदी। एक बारी मैं करवा ली ना टेंड ते विचों इन्ना को निकला, यकीन मनो नाल दे पिंजरे चो बांदरी धोखा खा गई। मेरे अल मुंह करके कहती है हेलो मंकी दे अब्बू, अपना पिंजरा छड़ के उधर किधर जा गई। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।